A very heartily welcome to you all to our channel EduKing. Today we are going to start with quadratic equations. This is a very important chapter for your board examinations, as well as this chapter is very important for you because this forms the base of your mathematics, okay? And this will also be helpful for you for other chapters as well, okay? So study this chapter with focus. So let's start without wasting any time, okay? So quadratic equations. Before studying that what does a quadratic equation means, we should know that what does the term quadratic means. Quadratic is like quadratic polynomial और quadratic expression कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है. देखिए quadratic expression इस तरीके का दिखता है. Quadratic expression looks like this: a x square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial. Polynomial क्या होता है? Polynomial is an algebraic expression consisting of constants and variables. I hope ये basic algebra आप सबको आता होगा क्योंकि this was taught to you all in junior classes and you all are, I hope that you all are in class 10th, so this should be clear to you all. Okay, so this is a quadratic polynomial. ठीक है, quadratic polynomial क्या होता है कि an algebraic expression having the highest power of the variable. Highest power of the variable is known as the degree of the expression, isn't it? Highest power of the variable, that is degree, equals to 2. See, the highest power of the variable here is 2, so that is why it's a quadratic polynomial. Okay, now what does quadratic equation means? When this quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equals to 0, then this becomes a quadratic equation. This is a quadratic equation. क्यों ये quadratic equation है? क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है, वेरिएबल यहाँ पर x है, a b and c आर कॉन्स्टेंट्स. हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है. Okay, that is why it's a quadratic equation. Why we are saying that it's an equation? See, we have introduced an equal to sign. It is equal to 0, and you should note this, that the standard form of the quadratic equation is this. Standard form of quadratic equation. The standard form of quadratic equation looks like this. Looks like this: ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of the quadratic equation. You should keep this in your mind. Okay, so if I give you a question like this, which says that check whether this equation x plus 2 upon 3 equals 4 upon x plus 3 is a quadratic equation or not. तो quadratic equation क्या होती है? अभी क्या पढ़ा है आपको, definition से क्या समझ में आया कि a quadratic equation is that equation जहाँ पर highest power of variable, that is the degree of the equation is 2. पर यहाँ पे आपको इस algebraic expression में highest power of variable क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है. पर इसे सॉल्व करना चाहिए आपको पहले और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये था स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इस इक्वेशन को या ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए पहले सॉल्व करके. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? पहले सारे टर्म्स को एक साइड पे लेकर जाइए, LHS पे लेकर जाइए और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से. देन यू शुड गिव योर जजमेंट दैट वेदर दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ लीनियर इक्वेशन और सम other kind of equation having some other degree like 3, 4 or something like that. Okay, so first you should
सिंप्लीफाई दिस. ओके, सारे टर्म्स को एक साइड पे लेकर आना है पहले और उसको इक्वेट कर देना है 0 से. ओके, चलिए करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे हो गया. x, don't know what happened. So this is x square, this is x square plus 2x, this is equals to 12. So see, यहाँ पर एक mistake we have committed. यहाँ पर first of all you should take LCM because यहाँ पर this was there and you should first of all take LCM, then only you can cross multiply, otherwise not. Okay, so first of all take take LCM. Okay, x plus 2 upon 3, this gives 4 plus 3x upon x. So we get x square plus 2x, then we get 12 plus 3 3 is 9x. Okay, this we got by cross multiplying. Okay, now we get x square minus 7x minus 12 equals to 0. We can also write this as x square plus minus 7 into x plus minus 12 equal to 0. Isn't it like that this form is similar to this standard form of the quadratic equation? If we see that, then we will get that a, if we compare this equation that we have got and the standard form of the quadratic equation, if we compare these two, then we will see that here a is equals to 1, b is equals to minus 7 and c is equals to minus 12, isn't it? So yes, this equation is also a quadratic equation. Why we say this? Because the highest power of the variable over here is 2. Okay, that is why this is a quadratic equation. Okay, would you like to do some more questions like this? So let's do another question. So next question, if I give you, then it will be like this. Tell me that whether x minus 2 whole square plus 1 equals 2x minus 3 is a quadratic equation or not. Tell me this, it's a quadratic equation or not. So how can you tell this? First of all, take all the terms to one side and equate them to 0. Okay, then only decide. Okay, solve this. So this will be x square minus 4x, not 4x, yes 4x only, plus 4 plus 1 equal to 2x minus 3. Okay, equal to 2x minus 3. Then what will happen? सारे terms को एक side लेकर जाइए. This will give us x square minus 6x, okay, and 5 plus 3 will be 8. This will be equal to 0. So yes, this is also a quadratic equation. Why we are saying this? Because देखिए यहाँ पर ये minus sign तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. Basic, these are basics and I hope this is clear to you all. Okay, so see, if we compare the equation, the above equation with the standard form of the quadratic equation, then we will get that a is equals to 1 in the above equation. We see that a is equals to 1, b is equals to minus 6 and c is equals to 8. हो गया? Did you enjoy this? You should enjoy mathematics, okay? Because this is the only subject that does not require rote learning. रट्टा नहीं मारना पड़ता मैथमेटिक्स में. इफ़ यू वंस लर्न इट देन यू लर्न इट फॉर लाइफ टाइम. बस एक बार मन लगाने की ज़रूरत होती है. ओके, सो लेट्स स्टडी अनदर टॉपिक. ओके, दैट इज़ रूट्स. रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूट्स क्या होते हैं. नॉट द रूट्स ऑफ प्लांट्स, दिस इज़ मैथमेटिक्स.
So we are going to study about the roots of equation. Here our equation is the plant and the roots are its solutions. Okay, that was just a joke, just to compare, just to give the analogy, but that's not like this. Okay, so roots क्या होते हैं? Roots basically solution होता है एक equation का. जैसे कि अगर हम देखें एक लीनियर इक्वेशन से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि 2x + 4 is equals to 3. Okay, or not 3, let's say it's equals to 2x + 4 is equals to, let's say it's equal to 7. Okay, so what if we say that x की जगह ऐसा क्या रखें that ये इक्वेशन जो है ट्रू हो जाए, ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, ऐसा क्या रखें x की जगह? तो क्या रख सकते हैं x की जगह ऐसा? we can only find this out by solving this equation. So यहाँ पर 7 - 4 होगा and this will get us 3 and this will get us 3/2. So अब ये करके देखो एक बार. So ये हो गया रूट ऑफ दिस इक्वेशन. x = 3/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 2x + 4 = 7 नाउ. ठीक है, रूट का मतलब क्या है कि ये जो x है दैट इज 3/2, ये 2x + 4 = 7 जो हमारी इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब हम जब उसको उसमें पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसको चेक करते हैं चलिए कि ऐसा सच है कि नहीं. चलिए 3/2 हम लोग पुट करके देखते हैं. तो 3/2 जब हम लोग पुट करेंगे तो 3/2 ओके, प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 4. ओके, तो यहाँ पर 4 = 7. ओके, सो देखिए ये कैंसिल हो गया अपने आप. 2 गॉट कैंसल्ड. दिस इज 3 + 4 = 7. सो 7 is equals to 7. इक्वेशन इज मेंटेन्ड. इक्वल टू साइन का सिग्निफिकेंस जो है वो मेंटेन्ड है. 7 is equal to 7 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये इससे क्या पता चल रहा है कि 3/2 was the root of the above equation. ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी होता है. ओके, ऐसे ही कुछ ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी होता है. कैसे? अब यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ये मानिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c जो कि स्टैंडर्ड कहलाती है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, तो अगर हम कहते हैं, मानिए अगर हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन का रूट, इफ वी से दैट से लेट्स से x = k कोई कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट मतलब कोई रूट है. x = k इज द रूट ऑफ अबव इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या हम कह रहे हैं कि जब हम x = k पुट करेंगे ऊपर ax² + bx + c = 0 वाली इक्वेशन में, तो हमें जो इक्वल टू साइन है वो मेंटेन रहेगा. मतलब कि LHS RHS के इक्वल हो जाएगा. मतलब x की जगह हम जब k पुट कर देंगे तो भी इक्वेशन मेंटेन रहेगी. ठीक है, और जब ये चीज़ ट्रू, अगर ये चीज़ ट्रू आ रही है तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि k रूट है अबव इक्वेशन का. For your information students, I should tell you this that a quadratic equation, एक लीनियर इक्वेशन जैसे हमने ऊपर देखी, एक लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक ही रूट होती है. ठीक है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं. 2 रूट्स का मतलब 2 नंबर्स होते हैं. ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जो अगर हम उस इक्वेशन में रखें तो वो सेटिस्फाई हो जाती है. मतलब कि 2 सॉल्यूशंस होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और एक लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है. तो नोट दिस थिंग डाउन दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 roots or 2 solutions. Roots मतलब solutions always. Okay,
This is always true. Okay, so keep this thing in mind. What you have to keep in your mind, that a quadratic equation always has two roots. Okay, ये messy हो जा रहा है तो ऐसे ही रखते हैं इसको. A quadratic equation has two roots. Okay, you have to keep this in mind. I hope you all understood this, that कि quadratic equation कैसी होती है. quadratic equation के कितने रूट्स होते हैं. quadratic equation के कितने रूट्स होते हैं, हमेशा टू रूट्स होते हैं. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रूट्स के. ठीक है, तो अगर इफ़ आई गिव यू अ क्वेश्चन दैट x equals to 1 is the root of equation x equal to 1 is the root of equation x square plus 2x plus 1, sorry, not this, minus 2x plus 1 equals to 0, then check this thing that whether it is true or not. मतलब ये true है कि नहीं है. कि मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि x इक्वल टू 1 जो है रूट है कि नहीं, ये चेक करना है. मतलब ये क्वेश्चन की थोड़ी सी वी हैव नॉट यूज द करेक्ट सेंटेंस, बट ये चेक करना है बेसिकली कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. तो ये चेक करने के लिए क्या है, चेक करना है मतलब कि बेसिकली पुट दिस x इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन. ओके, पुट दैट इन द गिवन इक्वेशन. ओके, तो अगर पुट करेंगे 1 इसमें तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ RHS में 0 है, LHS में भी 0 आना चाहिए, अदरवाइज द इक्वालिटी विल नॉट बी मेंटेन्ड. एंड इक्वालिटी नहीं मेंटेन्ड होगी देन दैट विल इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस विल गेट अस माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 इक्वल टू 0. तो येस, द इक्वालिटी इज मेंटेन्ड. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, अब रूट्स निकालने के कुछ तरीके होते हैं. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि हाउ टू फाइंड रूट्स, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो एक रूट है इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इसका कोई दूसरा रूट भी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अभी आई हैव टोल्ड यू दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स. ठीक है, तो द अदर रूट फाइंड करने के कुछ तरीके होते हैं एंड वी विल लर्न दैट इन द अदर लेक्चर. टुडे वी हैव टू लाइक स्ट्रेंथन आवर बेसिक्स. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. इन मैथमेटिक्स practice is the most important thing. Okay, without practice we will not get it. Okay, so the question is something like this. The question is, if minus 1 by 2 is a solution, solution और root एक मतलब होता है. ठीक है, root is another term for solution, solution is another term for root. Okay, if minus 1 by 2 is the solution of equation 3x square plus 2kx minus 3 equal to 0, then find k. We have to find k. ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में पहली बात दिया क्या हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ है दैट -2 इज़ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि वो रूट है. किसकी रूट है, इस इक्वेशन की.
मतलब कि अगर -2 को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमें वो 0 के इक्वल होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 0 के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये RHS ऑलरेडी डिफाइंड है ना, तो हम जब -2 -1/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये रूट है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब चलिए पुट करके पहले देख लेते हैं। जब भी दिया हुआ हो कि समथिंग इज द सोल्यूशन ऑफ सम इक्वेशन और सम थिंग इज द रूट ऑफ सम इक्वेशन, तो पहली चीज़ जो करनी होती है पुट करना होता है। पुट x इक्वल्स टू -1/2 इन द इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी? 3x²। इक्वेशन थी 3x² प्लस 2kx -3 इक्वल टू 0। दिस वॉज द इक्वेशन। अब इसमें -1/2 पुट करना है, ठीक है। क्यों पुट करना है? क्योंकि -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए पुट करते हैं। चलिए तो 3 डायरेक्टली करते हैं, या तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, प्लस 2k -1/2 -3 इक्वल टू 0। ओके, सो वी गेट 3/4 -2k/2 -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा? 3/4 -k y k, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गया, -3 इक्वल टू 0। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 4 मिलेगा, -3 -4k, ठीक है, -4k -12 इक्वल टू 0। ये 4 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिलेगा -4k -9 इक्वल टू 0, और देन वी विल गेट -4k इक्वल टू 9 and k equals to -9/4. So this is the value of k. Okay, understood? और यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, that what is the value of k. This was only asked in the question. Find k. आसान है, इस तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए next question. The question says that if 2 and 3 are roots of equation 3x² minus 2mx plus 2n equal to 0, then find m and n. The basic फंडा सिखा दिया है आपको, होप अब तक क्लियर हो गया हो। द वेरी बेसिक फंडा ये है कि वेन एवर रूट गिवन हो, कहीं लिखा हो किसी क्वेश्चन में कि ये रूट है, कि मतलब समथिंग इज द रूट ऑफ सम इक्वेशन, बेसिक चीज़ क्या करनी होती है? पुट करके देखो, उसमें डाल के देखो उस इक्वेशन में कि क्या होता है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। 2 को पहली बात पुट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी हमारी? इक्वेशन थी 3x² minus 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसमें चलिए पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2। पहली बात देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें ये भी दिख रहा है कि देखिए दोनों रूट्स दिए हुए हैं, दोनों रूट्स को एक एक बार पुट करके देखते हैं। पहले हम लोग 2 को पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 को पुट करते हैं चलिए इक्वेशन में, तो करेंगे पुट, तो मिलेगा 4, ठीक है। डायरेक्टली हमने स्क्वायर कर दिया 2 का, -2m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 12, यहाँ से मिलेगा -4m, यहाँ से मिलेगा 2n इक्वल टू 0। देन वी विल गेट, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं चलिए, 4m प्लस 2n इज इक्वल्स टू -12। सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड हमने कर लिया और सारे कांस्टेंट को एक साइड कर लिया, ठीक है। तो एक हमारी इक्वेशन हो गई। अब एक बार चलिए 3 को पुट करके देखते हैं। पुट
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। x इक्वल टू 3। बेसिक चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में जो करने वाले हैं वो ये है कि वी विल गेट 2 इक्वेशंस एंड देन वी विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, ओके। तो पुट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें 3 पुट कर लेते हैं। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 4 माइनस दैट विल गिव अस 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 12 माइनस 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, ओके। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 12 एंड यहाँ पर दैट वॉज नॉट इक्वल टू 0, दैट वॉज इक्वल्स टू here this is equals to minus 12, okay। so yes this is equals to minus 12, okay। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हम लोग बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या मिला, माइनस 2m इक्वल टू 0। आई थिंक वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक, ओके। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। हाँ मैं so let's solve another question, students. So the question says if 2 and 3 are roots of this equation, okay, if 2 and 3 are roots of this equation, then find m and n. तो अभी तक आई होप आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे भी दिया हुआ है कि सम थिंग इज द रूट ऑफ सम इक्वेशन, देन क्या करना है, डायरेक्टली पहली बार पुट करो उसको। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 रूट्स होते हैं, तो देखिए दोनों रूट्स दिए हुए हैं, 2 और 3 दोनों रूट्स दिए हुए हैं। तो एक एक बार दोनों को पुट करके देखिए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, यू विल पुट द रूट्स 2 and 3 1 by 1 इन द इक्वेशन एंड देन यू विल गेट 2 इक्वेशंस। देन उन 2 इक्वेशन को यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली टू गेट m and n which is asked in the question, okay। So let's do this. So equation है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0। इसमें m और n को फाइंड करना है। पहली बात दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 एक रूट है इक्वेशन की, पहले पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करते हैं 2 को, माइनस 2mx, यहाँ पर x की जगह तो 2 को पुट करना है ना, 2 पुट किया प्लस 2n इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 12
माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है हमें 4m माइनस 2n इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब ये भी दिया होता कि 3 भी है उस इक्वेशन की रूट, तो चलिए उस इक्वेशन में इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0, यही थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें 3 भी है हमारी एक रूट इस इक्वेशन की, तो चलिए 3 को पुट करते हैं। ठीक है, 3 को पुट करेंगे, माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 3 9, 9 3 27, माइनस 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। सो we will get minus 2n इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, कौन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ठीक है, सो वी विल राइट सॉल्व, और मोर प्रिसाइसली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, I hope you must have studied simultaneous equations and how to solve simultaneous equations in your previous chapters or previous classes. Okay, so equation 2 थी 6m minus 2n equal to 27, और equation 1 थी 4m minus 2n equals to 12, 4m minus 2n equals to 12. Okay, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2m, ये कैंसिल हो गया, 0 0 तो कैंसिल हो गया डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आ गया 15, तो m की वैल्यू आ गई 15/2। ओके, अब n की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12 में एक बार पुट करते हैं। ठीक है, 4m माइनस 2n इक्वल टू 12 में m की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो वी गेट 30 माइनस okay, we get this, then we'll get minus 2n or not minus 2n, यहाँ से मिल गया 2n equals to 18. okay, subtract this, then we'll get 9. So we got the values of m and n as m की वैल्यू 15/2 और n की वैल्यू 9. आई होप इट्स क्लियर। कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, लेट्स रिवाइज इट वंस। कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था वैल्यू फाइंड करनी है m और n की, और हमें रूट्स दिए हुए थे इक्वेशन के। ठीक है, रूट्स दिए हुए थे 2 और 3, रूट्स दिए हुए थे, सिंपली क्या किया हमने, एक एक बार पुट कर दिया इक्वेशन में दोनों रूट्स को। ठीक है, जब हमने इक्वेशन में पुट किया दोनों रूट्स को, जैसे कि ये देखिए पहले x इक्वल टू 2 पुट किया, फिर उसके बाद x इक्वल टू 3 पुट किया। जब x इक्वल टू 2 पुट किया तो हमने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया ऐसे x की जगह पर, और एक इक्वेशन वाली उसको हम लोगों ने कह दिया वो इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 3 को पुट किया इक्वेशन में। ठीक है, 3 को पुट किया, जब हमने 3 को पुट किया तो हमें एक अनदर इक्वेशन मिली, ये देखिए वी गॉट अनदर इक्वेशन। तो जब हमें दूसरी इक्वेशन मिली x की जगह 3 पुट करने पर, तो हमने उन दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। कैसे किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ओके, ऐसा किया हमने, ये देखिए जब हमने ऐसा किया तो हमें m की वैल्यू मिल गई 15/2, एंड जब हमको m की वैल्यू मिल गई तो हमने इक्वेशन 1 में m की वैल्यू पुट करी सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, ये देखिए हमने इसमें m की वैल्यू पुट करी, और जब हमने m की वैल्यू पुट करी, ये 30 है, तो हमें सिंपली n की वैल्यू मिल गई, इजंट इट। ये देखिए, सो दिस इज द
case. We got m values of m and n. I hope the concept of roots and the basic general formula of or the general expression like ax square plus bx plus c equal to 0, this is the general form of quadratic equation. I hope these things are clear to you all today. So today we'll keep it in here, and if you enjoyed this lecture, I hope you will come to another lecture as well, in which we will be discussing about how to find roots of an equation, and also we will discuss about nature of roots, and we will also solve a lot of questions. So thank you so much for studying today, and just keep learning and keep growing. Thank you.